Hi guys, in today's video I will be talking about the rules during the BMS examination and what you should wear and a lot of different things that you should know at least before giving your BMS entrance exam at SXE. So first things first, on the day of your exam, which is I think 6th June, try coming from the front gate because see, if you know Xavier's, you know there are two gates, right? There's the front gate and there's the back gate. Now what happened ki the day when I went for my entrance examination, my dad took me from the back gate, but then the guard said that he cannot let the students from the back gate, so we had to walk all the way just to reach the front gate. So it's better if you just come directly in the front gate or whichever place they have told you for your year, so you can do that accordingly, right? Now for clothes, like what you should wear on the day of the examination, I think like at least for my examination, they did not do any sort of checking that, oh my god, you're wearing this, you will not be allowed. They did not really do any checking like this, but it is always safe to be dressed in a little decent manner so that they might not totally like remove you from giving the examination. So for me, I would recommend wearing something which is decent, something that you would wear for any of the examination that you would give. Let's say if you're going for CUET, they have a certain dress code, so try following a certain dress code, and I think that will be better. Shoes, wear something simple like maybe a chappal, slipper, flip-flops, whatever you refer that. Then you can wear like a very plain t-shirt or whatever. I wore this. If you can see, I wore this on the day of my examination. I think plain solid color t-shirt or something like that. Maybe a plain white kurti, whatever. Something that is very simple, decent, not complicated, not with a lot of pockets, so that they might not suspect you of being a little suspicious. So yeah, avoid wearing accessories, like a lot of accessories. I know if you're a materialistic girl, just for one day please don't wear accessories, okay? A few rules for the examination: you are not allowed to carry calculators. No smartwatches, not at all. No smartwatches, no Bluetooth earphones, headphones, smartphones, nothing. No electronics, none of that, okay? It is absolutely prohibited. Do not carry any of those, okay? These are a few things you need to keep in mind. Now for the documents you need to carry, now the first thing is that you need to carry a transparent file. In that transparent file you will put your acknowledgement card, carry the fee payment receipt, the ID proof original. For example, like you can carry Aadhaar card, but उसका original carry करना है, not the Xerox. Most of the people make the mistake of like carrying Xerox. They don't want Xerox, they want the original document. तो अपना original आधार कार्ड लेके चले जाना, ठीक है? So these documents should be there in your file. अगर कुछ और भी documents उन लोगों ने mention किया है, then make sure to check their website properly and accordingly अपना documents carry करना. These were the documents which were asked in my year, तो मैंने ये सब carry किया था, and they will check the documents. तो ऐसा मत सोचना कि अरे छोड़ यार क्या ही हो जाएगा. They will check the documents, so be very careful and carry all the necessary documents, alright? On the day of the examination, तुमको जो भी टाइम बोला गया है कि लेट्स से ये टाइम में तुम लोग को आना है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए XYZ टाइम, make sure that you reach 30 minutes earlier. Like that is a very basic thing, right? तुमको obviously जल्दी आना होगा कोई भी एग्जाम के लिए, obviously तुमको एंटर करने तो देगा नहीं. यू विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम. जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगेंगे, देन दे व्हाट दे डिड इन आवर ईयर वाज लाइक, वो लोग ने like they made one line for like only the girls and then one line only for the boys, and then accordingly like they were allowing students to enter, and then जिनका जो रूम अलॉट होगा they will be sending those students accordingly, ठीक है? वो अपने आप देख लो कौन सा क्लास है आपका. नाउ द थिंग इज़, आप बोलोगे कि दी आई डोंट नो मेरा क्लास कौन सा होगा. आई थिंक 1 day or 2 days बिफोर योर एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन आगे तक, आई थिंक दे शुड सेंड यू अ मेल, या फिर अभी भी आप चेक कर लो, मुझे नहीं पता आपको अभी तक मिला होगा कि नहीं. दे विल डेफिनेटली सेंड यू अ मेल विच विल शो द रूम अलॉटमेंट.
एंड द रूम अलॉटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू आई थिंक योर फॉर्म नंबर, तुम्हारा जो भी फॉर्म नंबर है, लेट्स से 1 to 50, जिन लोगों का भी फॉर्म नंबर 1 to 50 के अंदर है, दे विल बी सिटिंग इन रूम 10। ये मेरा ईयर में था। फाइनली आप अपना चेक कर लेना कि आपका फॉर्म नंबर क्या है एंड आपका उसके हिसाब से आपका कौन सा रूम नंबर होगा। मेक श्योर यू चेक दैट मेल, वरना फिर थोड़ा टफ हो जाएगा आपको अपना क्लास ढूंढने के लिए। एंड इफ़ यू डोंट गेट अ क्लास, प्लीज़ इमीडिएटली आप ask the staff members, ask fellow students and sit accordingly. Now I will be telling you something which might sound a little childish, but still, just in case किसी के साथ हो ना, कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एक बार चेक कर लेना कि वो पार्क स्ट्रीट कैंपस का हुआ है, नॉट फॉर राघवपुर कैंपस। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से राघवपुर कैंपस के लिए अप्लाई कर देते हैं एंड देन दे ब्रिंग दैट डॉक्यूमेंट विद देम एंड देन तुमको नहीं बैठने देगा वो एग्ज़ाम के लिए इफ़ यू ब्रिंग द राघवपुर कैंपस का मटेरियल्स। वेरी ऑब्वियस थिंग, बट आई स्टिल थॉट टू लाइक लेट यू गाइज नो। मैं जो रूम में बैठी थी लाइक फॉर माई एग्जामिनेशन, हम लोग लाइक जब व्हेन आई एंटर्ड बेसिकली, तो उधर पर क्या था कि आई आस्क्ड दी अदर स्टूडेंट्स, कोई प्रोफेसर तब तक नहीं थे क्लास में, सब एवरीवन वाज ग्रेजुअली एंटरिंग द क्लासेस राइट। तो तब तक प्रोफेसर्स नहीं थे, सब कोई जस्ट इट वाज जस्ट एन एम्प्टी रूम एंड देन अ फ्यू स्टूडेंट्स वर सिटिंग, बट मोस्ट ऑफ देम वर सिटिंग पीछे पीछे में फॉर ऑब्वियस लाइक सब पीछे में ही बैठेंगे। तो मैंने किसी से पूछा कि आधे सिटिंग अकॉर्डिंग टू लाइक द फॉर्म नंबर्स, कोई लाइक ऑर्डर में बैठ के, तो वो लोग ने बोला नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। तो मैं फर्स्ट बेंच में बैठ गई। नाउ द थिंग इज़ द रीज़न वाई आई सैट इन द फर्स्ट बेंच इज़ बिकॉज आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, ठीक है। तो मुझे लाइक कुछ भी डाउट भी होगा कि सर ये कैसे सबमिट, लाइक ये सबमिट करना है कि इधर सिग्नेचर करना है, मुझे कुछ भी अगर छोटा से छोटा भी डाउट होगा, आई विल हेजिटेट अ लॉट टू रेज माई हैंड एंड देन आस्क अ क्वेश्चन। तो मैंने सोचा द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर माई सेल्फ इज़ लाइक सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच। तो उसमें क्या होगा कि मेरे को कुछ भी डाउट है, मैं इमीडिएटली लाइक सर लाइक जस्ट अपना शक्ल उठा के मैं पूछ लूँगी सर से, अंदर मेरा काम चल जाएगा। तो ये रीज़न थी वाई आई वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वॉज एब्सोल्यूटली अलोन, तो मतलब मेरा कोई दोस्त वोस्त भी तो था नहीं कॉलेज में। मोस्ट ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स दे आर इन लाइक द आफ्टरनून बैच, लाइक द आर्ट्स एंड साइंस बैच राइट, बट इवनिंग बैच में आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड, लाइक एटलीस्ट स्कूल का तो कोई नहीं है। तो दैट वॉज वेरी लाइक डिसहार्टनिंग। सो या दैट्स देयर। मैंने बैक टू बैक जितने भी वीडियोस बनाए दे वर मोर अकेडमिक ओरिएंटेड, ये पढ़ना है वो पढ़ना, ये पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा में ये पढ़ सकते हो, ये चैनल से रेफर कर सकते हो, ये सोर्सेज यूज़ कर सकते हो। आई हैव मेड मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ विच आर मोर अकेडमिकली फोकस्ड, बट आई वॉन्ट टू एड्रेस वन मोर थिंग जो हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो ना, वट कैन हैपन इज़ दैट यू माइट फेस अ क्वेश्चन जो तुमने प्रिपेयर ना किया हो। वेरी नॉर्मल थिंग कि तुमने प्रिपेयर नहीं किया हो सकता है, एंड दैट क्वेश्चन केम एंड यू विल फील वेरी शॉक, तुम नर्वस हो सकते हो। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लाइक, तुम्हारा मेंटालिटी थोड़ा सा यू नीड टू कीप इट वेरी स्ट्रॉन्ग दैट देयर विल बी क्वेश्चंस। देखिए तुम अपने आप को एक छोटा सा पेप टॉक दे देना बिफोर द एग्जामिनेशन दैट देयर विल बी क्वेश्चंस विच यू माइट बी अनअवेयर अबाउट, देयर विल बी क्वेश्चंस जो तुमने शायद प्रिपेयर ना किया हो, एंड देयर विल बी सिचुएशन जहाँ तुमको थोड़ा बहुत अपना एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होगा टिपिकल MCQ क्वेश्चंस के लिए। देयर विल बी सिचुएशंस जहाँ तुमको नहीं पता होगा आंसर, बट यू कैन नॉट गेट नर्वस, तुम नर्वस नहीं हो सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट फील लाइक ओ माई गॉड आई एम अ फेलियर, आई विल नॉट गेट मार्क्स, आई विल फेल, मेरा चांस नहीं है, मेरे माँ बाप का 1500 रुपये चला गया, मैंने इतना पैसा वेस्ट कर दिया। अब यू गिव योर बेस्ट, ओके, ताकि कोई स्कोप ऑफ रिग्रेट ही नहीं बचेगा। बी अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स का नॉलेज है, देयर बी अ लॉट ऑफ सीनियर पीपल, आई हैव सो मेनी पीपल हैव कनेक्टेड विथ मी, दे हैव टॉक टू मी सेइंग कि उन लोग गैप ईयर ले रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर लाइक ऑलरेडी इन कॉलेजेस बट उन लोगों को जेवियर्स में आना है, तो वो लोग भी मेरे से लिंक्डइन में दे DM मी, दे सेंड मी मैसेजेस सेइंग कि कितना कट ऑफ था, क्या मेरा चांसेस है, क्या मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दे कीप ऑन मैसेजिंग मी। देखो देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड हु हैव ऑलरेडी गिवन सच एंट्रेंस एग्जाम्स, देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी देयर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तुमको नर्वस नहीं होना है, यू गिव योर बेस्ट, यू डू योर बेस्ट फ्रॉम योर पार्ट। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग स्टफ्स लाइक मेरे को देखो दीदी 64% मिला है, मेरे को 73% मिला है, क्या मेरा चांसेस है जेवियर्स में होने का।
दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फाइनल जो भी रिजल्ट है, उन लोग क्या कट ऑफ निकाल रहे हैं तुम्हारे ईयर के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन दोज थिंग्स. तो वो तो मैं अब वो मैं बैठ के तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा. वो तो कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन से लेवल का, तुम कितना अच्छा तुम एग्ज़ाम परफॉर्म कर पा रहे हो, प्लस तुम्हारे ईयर का कट ऑफ क्या निकल रहा है, तुम्हारे बोर्ड का कट ऑफ क्या निकल रहा है, उस हिसाब से तुमको सिलेक्ट करने का तुम्हारा जो भी होगा. एंड गाइज आई थिंक आई हैव डन माई बेस्ट विथ रिकमेंडिंग यू द बेस्ट रिसोर्सेज. जो भी चैनल्स के तुम लोग वीडियोज़ फॉलो कर सकते हो, जहाँ से भी पढ़ सकते हो, आई हैव शेयर्ड मोस्ट ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू माई बुद्धि. जितना भी मेरे से हो सकता था मैंने शेयर किया है. सो या दैट्स इट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. आई एम श्योर यू गाइज विल डू रियली वेल. एंड तुम्हारा एग्ज़ाम होने के बाद आई वॉन्ट यू गाइज टू कम बैक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है. इवन इफ़ इट्स बैड, इवन इफ़ इट गोज़ वेल, वट एवर इट इज़, मेक श्योर टू लेट मी नो. And yeah, that's it. And guys, we've completed 600 subscribers. I am so happy. I know I cannot post frequently क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं and a lot of things, academic stress है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब होते रहते हैं. and because of that I cannot post videos. But I think I've posted enough videos and enough guidance videos on YouTube about BMS, so I think that should be enough, and this is going to be the final video of our BMS series. But definitely stay tuned because बहुत सारे और भी अच्छे productive informative content will keep on coming in this channel. So make sure कि तुम लोग सब्सक्राइब्ड रहो चैनल में. देयर बी अ लॉट ऑफ फन वीडियोज़. एंड ऑल्सो तुम लोग अगर कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए तो मेक श्योर तुम लोग कमेंट करके बताओ आइडियाज़ दो क्या क्या बना सकते हैं. बिकॉज BMS के लिए आई थिंक मोर और लेस मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है. द वीडियो हैज़ गॉटन रियली लॉन्ग. सो या, आई सी यू सून. टिल देन, बाय बाय.